I'm getting some messages. Fine enough, fine enough. Okay, thank you very much, all of you. Thank you very much. I would go bilingual, Hindi as well as English. So that will help all of us to understand what we are trying to put forth. Now, this webinar that we are having, we conducted one in the morning for the up to class 8 parents, and there's the other one. Very important is how to remain connected. Am I audible to all of you, please? Yes, sir, very clear. Yeah, right. Thank you. Yes. Thank you. So, how to remain connected? What has happened is 22nd of March, we had the Janta curfew. After that, almost 2.5 months have passed, and the children are locked down. The school building is closed. The teachers are locked down. There have been 4 phases of lockdown, then the unlocked one. All those things are happening. These things have never happened earlier. We are witnessing it for the first time. Not only for the first time, I would say, I'm sure we will never witness again. We will not experience this. आगे भी शायद ना हो, ऐसा हम सोचते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम सबकी जिंदगी में ये पहली बार हुआ है. बच्चों के पास, बच्चे तो अभी ग्रोइंग एज में हैं, जो अभी बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं, लेकिन इसका महत्व तो आगे समझेंगे कि क्या लॉकडाउन होता है या क्या इसके what are the good things and what are not the good things, what are the after effects of this pandemic, what we called as the corona or the COVID-19. Now, during this pandemic, in fact, the WHO is saying that this will never die. Corona would never die. Yeah, we may get a vaccine. Vaccine आ सकती है, उसकी दवाई आ सकती है, जैसे खांसी जुकाम हुआ करता है, उसी तरह से ये कोरोना रहेगा, हमारी जिंदगी में रहेगा और हमारी लाइफस्टाइल में रहेगा. इसका मतलब है हम लाइफस्टाइल अपनी इसके हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी. इनफैक्ट and that's what WHO has said. It is not a pandemic, now it is an endemic. That means never ending. That is what WHO says. Every day we are watching the television, lot of news is there, so depressing, so distressing, and we are all worried about what's going to happen. Now, yes, as schools, as students, as parents, I'm sure you are also worried about it. You're also worried about your profession, you're also worried about your business, and with that, you are also worried about the education of your child. So, for the education of the child, when we talk about that, I would just say schools are ready, teachers are ready. Schools are getting ready also, and teachers are also getting ready. This was the first time टेक्नोलॉजी का यूज किया हमने. हम सुनते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे टीचर्स ने टेक्नोलॉजी यूज करी, वो भी इनएक्सपीरियंस से टोटली. 22 मार्च को कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस से, उनको नहीं पता था टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये गूगल मीट क्या होता है, जूम क्या होता है, उनको नहीं पता था. टेक्नोलॉजी भी अपने आप में बहुत से चेंजेस लेके आई है. सिमिलरली स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने, वो भी अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कैसे उससे लर्निंग हो सकती है, they also started understanding it. So it is a new thing. We are all experimenting with the use of technology. We have made mistakes, but we are learning every time. And we have to be ready to learn. Similarly, the parents and the students, they also, the technology is not limited to the mobile phone only. Or the Zoom meetings are not limited to mobile phone. It does not depend upon the mobile phone, what type of mobile phone you have.
It also depends upon the bandwidth that you are getting. It also depends कि आपके एरिया में क्या जो नेटवर्क है या नहीं है. और उसके साथ साथ एक और जो नया जो प्रॉब्लम आ रही है, जो सभी कह रहे हैं कि स्क्रीन टाइम कितना दें. अभी तक हम कहते थे मोबाइल फोन बच्चों को मत दीजिए, हम सब पेरेंट्स को यही कहते थे मोबाइल फोन मत दीजिए. ठीक है, चैट करते हैं, रात भर जागे रहते हैं. आज हम उल्टा कर रहे हैं, अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. हम कह रहे हैं मोबाइल फोन दीजिए उनको चैट करने दीजिए. और सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, वी आर फाइंडिंग अ वे आउट कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को भी यूज करें और कैसे हम एजुकेशन दें बच्चों को. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कंटिन्यूटी एंड कम्युनिकेशन. As parents, I would always appreciate if we remain in touch with each other. If we remain in touch with each other, we will come to know more about our own children. You will also come to know, we will also come to know, teachers will also come to know more about our own children, where they are faltering, क्या सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, ये भी मालूम पड़ेगा. एक बॉन्डिंग रहती है, हैंड होल्डिंग रहती है. हम पेरेंट्स का हैंड पकड़ रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों का हैंड पकड़ रहा है, और फिर अगेन बच्चे टीचर्स का हैंड पकड़ रहे हैं. तो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग, एक अच्छा बॉन्डिंग बनेगी. जब ये बॉन्डिंग बनेगी, डेफिनेटली द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड वुड बी बेटर, एंड ईच टाइम दिस वुड बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. सो अब हाउ टू कम्युनिकेट. So communication has got different ways, different medias. We can communicate through WhatsApp, emails are there, then SMS is there. Also, there are other social media platforms. In the beginning, if you remember, we started our classes on Zoom. Zoom में start करी. Zoom में start करी. एक बीच में कुछ suggestions आए, parents के disagreement आए कि सर Zoom पे मत use करिए. हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि जूम क्लासेस अगर करते हैं तो हमारा अकाउंट हैक हो सकता है. Those were there. Again we started thinking about it, कैसे करेंगे, क्या करेंगे. So we have moved to Google now, the Google Meet. Zoom जब स्टार्ट किया था उसमें प्रॉब्लम्स हमको भी आई थी. There were some outsiders, बाहर के, हमारे बच्चे नहीं, बाहर के लोग जो ज्वाइन कर लिए थे उसको, और ज्वाइन करके और उसमें जो है कुछ फिल्दी रिमार्क्स वगैरह वो भी उनमें ना लिखने लग गए थे. लेकिन जब गूगल मीट किया तो हमने हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का एक गूगल अकाउंट बनाया. गूगल एक डोमेन हमने खरीदा और उस गूगल डोमेन में गूगल अकाउंट बनाया. उस गूगल अकाउंट से अब जो भी टीचर को पढ़ाना है, करना है, वो उस गूगल अकाउंट में जो स्टूडेंट का ईमेल आईडी है, गूगल ईमेल आईडी sinainternational.edu.in के साथ में, उसके ऊपर लिंक भेजते हैं. The child has to click on the link and it directly goes into the teaching, whatever teaching has to be done for that. So an outsider will not be able to join. तो ये कुछ precautions हमने start किए हैं. Initially, yes, उसमें भी प्रॉब्लम आई थी कि कैसे पासवर्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ईमेल आईडी नहीं मिल रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं. ऑल दोस, दीज आर इनिशियल हिकअप्स, हमेशा ये रहता है. और आज की तारीख में ऑलमोस्ट 63 people have already joined. That means, and every day our classes are going on very strongly. बहुत अच्छी तरह से हो रही हैं. जब क्लासेस हो रही हैं, which means that we have learned now. We have also learned how to handle this technology. So that is there. Government of India ने भी कहा कि इन ऑनलाइन क्लासेस एक सोल्यूशन है. अभी स्कूल्स नहीं खुलेंगे, कब तक नहीं खुलेंगे ये भी नहीं पता. 12th क्लास के, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम जो रह गए थे वो अभी फर्स्ट से होने का है, लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क उसमें भी आ रहा है क्योंकि some parents are objecting because of the containment zones or the red zone which the children are, or the stress which the children are facing. Because of that, there are ifs and buts. होगा नहीं होगा सब कुछ चल रहा है. Possibly ये है क्योंकि मैं उस
एजुकेशन कमिटी में हूं तो मेरे को मालूम है पॉसिबली ये है कि शायद एग्जाम्स हो जाएंगे, बट ये तो एक पार्ट रहा। लेकिन जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं इनको किस तरह से आगे, जो प्रेजेंट 10th क्लास है, 12th क्लास है, जो 9th क्लास है, 11th क्लास है, इनके भी सिलेबस कवर करने हैं कि नेक्स्ट ईयर 10th और 12th को भी एग्जाम देने। अब इस 10th 12th को एग्जाम अगर नेक्स्ट ईयर देना है तो इनका सिलेबस भी कवर करना है, और क्लासेस कब स्टार्ट होंगी कोई अभी पता नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस, कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये ज्यादा बढ़े तो हो सकता है क्लासेस और डिले हो जाएंगी। अभी तक जो HRD मिनिस्टर ने कहा है, he has said that the classes possibly after 15th August, but maybe in the first week of September। वो उन्होंने दो डेट्स दी हैं कि 15 सितंबर को इनफैक्ट डिसीजन लिया जाएगा, सॉरी 15 अगस्त को डिसीजन लिया जाएगा, 15 अगस्त को डिसीजन लिया जाएगा, तब तक तो बिल्कुल ही नहीं है। और हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से हो, कोई पता नहीं, और आगे बढ़ जाए। तो वी आर नॉट श्योर, हमें कुछ नहीं पता आगे क्या होगा। बच्चों की पढ़ाई होनी है, इनको एग्जाम्स के लिए तैयार करना है, 10th और 12th क्लास का सिलेबस भी करना है। बोर्ड ने भी कहा है कि सिलेबस कुछ कम कर देंगे, अभी नेक्स्ट वीक तक पता लगेगा कितना सिलेबस कम किया जाएगा। इनफैक्ट जून के लास्ट तक पता लगेगा कितना सिलेबस कम होगा, अभी नहीं पता। हमारी क्लासेस और बोर्ड मिनिस्टर MHRD ये भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ही करवानी पड़ेंगी अभी तो। अब ऑनलाइन क्लासेस करवानी पड़ेंगी, विच मीन्स दैट बच्चे के पास में प्रॉपर साइज का, बड़ी स्क्रीन का मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो या आईपैड हो, ताकि आंखों के ऊपर स्ट्रेस कम पड़े। माय सजेशन वुड ऑलवेज बी विदाउट सिम वाला होना चाहिए, दो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस नाउ डेज। व्हाट्सएप कॉल तो इंटरनेट अगर कनेक्टिविटी है उससे भी हो जाते हैं, कॉल तो कैसे भी हो सकते हैं लेकिन फिर भी एक विदाउट सिम वाला हो और थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन का हो। MHRD ने कहा है कि क्लासेस 1 to क्लास 12 तक 12 चैनल्स टीवी पे भी बना रहे हैं वो। दे आर प्रिपेयरिंग गेटिंग 12 चैनल्स ओवर देयर, ताकि बच्चे समझें, टीचिंग पढ़े होती रहे। क्वाइट पॉसिबल इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल ये सब चलता रहेगा। नाउ एट द सेम टाइम इफ एजुकेशन हैज टू कंटिन्यू, हाउ as a school we do it, so we decided online classes करने के लिए। for the last almost 2 months, बीच में 15 days का गैप दिया था, ऑनलाइन क्लासेस चली। the responses have been fairly good enough, and my only concern with the parents, whosoever, all those parents who are present over here, my only concern has been कि बच्चे रेगुलर नहीं रहे ऑनलाइन क्लासेस। जबकि बोर्ड ने, अब CBSE बोर्ड कह रहा है कि अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करिए उनकी बच्चों, देयर प्रेजेंस हैज टू बी देयर। तो बोर्ड, बच्चे रेगुलर नहीं रहे या कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी ज्वाइन नहीं किया। पेरेंट्स को जब कहते हैं, हर पेरेंट्स से हमारे टीचर्स ने टेलीफोन करके बात करने की कोशिश की और उनसे कहा कि बच्चे को क्लासेस ज्वाइन करवाइए, तो बड़ा ही, अब हम समझ नहीं पा रहे उसको कैसे हेल्प करें, बच्चे को कैसे हेल्प करें, पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करें। पेरेंट्स हमको जवाब देते हैं कि सर बच्चा हमारी नहीं सुन रहा है, वो सो के ही नहीं उठता है, 12 बजे तक सो के नहीं उठ पाता है। कभी कभी बच्चे आके बैठते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उनसे कहते हैं वीडियो ऑन करो, तो कहते हैं सर अभी मुंह भी नहीं धोया है, बाल बिखरे हुए हैं, और वीडियो मत ऑन कर दीजिए, और हम बैठे हुए हैं। कभी बच्चे वीडियो ऑफ करके और चले जाते हैं। नाउ दीज आर चैलेंजेस, ये सब चैलेंजेस है हम सबके लिए, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। उनको, बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए। मोटिवेट एट होम, जब आप घर पे हैं तो आप लोग मोटिवेट करेंगे, हमारे साथ में तो हम मोटिवेट करेंगे।
बच्चों को इस समय एक मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि वीडियो ऑफ करके अगर चला गया तो क्या वो मोबाइल पे कहीं और चैटिंग करने लग गया कि बच्चा, या किसी और साइट पे चला गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि बड़ा स्क्रीन हो. इनफैक्ट इन द मॉर्निंग एक पेरेंट का सजेशन आया कि सर ये जो छोटा जो स्क्रीन होता है इसको आजकल सबके घर में एंड्रॉइड टीवीज है, उसमें ज्वाइन कर दीजिए, स्मार्ट टीवीज है उसमें ज्वाइन कर दीजिए, बड़ा आएगा और सबको दिखता रहेगा, चलता रहेगा. खैर सजेशन है, दोज हु वांट दे कैन. तो दैट इज दैट. नाउ अब जब ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई तो हमने कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन उसको भी अब सॉर्ट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम भी सीख रहे हैं सब कुछ. सो दैट इज वन पार्ट. हम वर्कशीट्स भी देंगे बच्चों को, पीडीएफ भी देंगे, उन बच्चों को हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे, और यही नहीं उनको वीडियोस भी बना के भेज रहे हैं. सो दैट बट at your end, at parents end, it becomes very important to find out from the child कि क्या बच्चा क्या कर रहा है. ऐसा कुछ हैंड होल्डिंग चाहिए टीचर्स के साथ में तो टीचर से कनेक्ट करें, प्रिंसिपल के साथ चाहिए प्रिंसिपल से कनेक्ट करें. So because we have to stand together, each one of us has to support, and finally we have to support the child. So that is what is very important. Another thing which comes to my mind today is we are all worried कि जब स्कूल खुलेंगे नहीं तो क्या होगा, और स्कूल खुलेंगे तो कैसा होगा. डेफिनेटली स्कूल खुले तो जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस आएंगी, we would be 100% following those government guidelines, no doubt about it. और गवर्नमेंट गाइडलाइन से 2 गाइडलाइन हमारी ज्यादा ही होंगी, बेटर ही होंगी. Safety and security of a child is the topmost priority of this institution of Sinai International School. अगर हम जरा भी हमें लगता है कि हमारे बच्चे सेफ नहीं होंगे, अगर हम उनको बुलाएंगे तो हम नहीं बुलाएंगे. तो 100% सेफ, चाहे वो डे स्कॉलर हो या वो बोर्डर हो, दोनों की सेफ्टी. बोर्डर्स के लिए हम सेपरेट अरेंजमेंट कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग का, डे बोर्डर्स के लिए और डे स्कॉलर्स के लिए सेपरेट अरेंज कर रहे हैं लर्निंग का, टीचिंग लर्निंग. उसमें एक जो शुरू का जब मैं डेली रूटीन देखता हूं बोर्डर्स डे बोर्डर्स का, वो एक आता है कि बसेस की फैसिलिटी. बसेस में एक साथ बस में कैसे बच्चे आएंगे. एक तरीका है कि बस में आधे बच्चे आए, दूसरा है कि हम कह दें कि नहीं फॉर नेक्स्ट 3 months या 4 months या जो भी टाइम फ्रेम होगा, प्लीज यू पीपल ड्रॉप योर चाइल्ड अप टू द स्कूल गेट एंड पिक देम अप फ्रॉम देयर. स्कूल गेट से अंदर तक पूरी जिम्मेदारी हमारी, स्कूल गेट तक आपकी. तो आपको भी बच्चे की सिक्योरिटी देखनी है, हमको भी बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी देखनी है. फेस मास्क वगैरह लगा के, हैंड ग्लव्स ले लेके सैनिटाइज करना, ये सब भी स्कूल में काम होगा. एज वेल एज पेरेंट्स जब बच्चों को लेके आ रहे हैं तो उनका भी होगा. बोर्डर स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में प्रोवाइड किया जाएगा जो डिस्पोजेबल होते हैं, यूज एंड थ्रो. ऐसे फेस मास्क, ऐसे हैंड ग्लव्स जो यूज एंड थ्रो वाले, उनको यूज करें. हैंड वॉश एरिया बढ़ा दें. तो ये सब चीजें करने से हमारे और जो सेफ्टी है वो बढ़ेगी. सारे टीचर्स को हम अंदर कैंपस के अंदर बुला रहे हैं. जितने भी वर्कर्स हैं, ग्रुप डी स्टाफ है, जितने वर्कर्स हैं उनको भी हम कैंपस के अंदर उनको अकोमोडेशन और फूड दे रहे हैं. उसके लिए हम तैयार हो गए ताकि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए. एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो स्ट्रेस ऑन कि बच्चों में स्ट्रेस है, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं, दे आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. घर के अंदर बंद हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो उनके फूड हैबिट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है. पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द फूड हैबिट्स, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, फूड हैबिट्स के लिए. तो इम्यूनिटी हैज टू डेवलप. नॉट ओनली दिस, उनको रेगुलर कुछ एक्सरसाइज, योगा वगैरह जो भी है, प्राणायाम करते हैं, ये जरूर करवाना चाहिए ताकि उनका जो है और स्ट्रेंथ मिले उनको.
mental strength as well as physical strength. Both are equally important. And not only this, psychologically they have to be very, very strong. बहुत strong बनना है. आगे stress level कम करने के लिए. That is what we have to do it. स्कूल में वॉशरूम्स वगैरह बन रहे हैं और ये सब सिस्टम्स नए लेके आ रहे हैं. And I want suggestions from the parents. Again and again, I always would require suggestions from the parents. जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशन सब अच्छा नहीं कर पाएगा. बच्चे वहां के अच्छे नहीं कर पाएंगे. So I'm always willing to accept those. I mean, ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सजेशन मान लिए जाएं, या हो सकता है कुछ जो बेस्ट हो उनको लिया जाए, लेकिन डोंट फील बैड अबाउट इट. कभी कभी हमारी मीटिंग्स में होती है, हमने कुछ बोला, हमारे टीचर्स ने मना किया, तो हमें भी मानना पड़ता है. सो वी कम टू सम कॉमन कंसेंसस फॉर इट. सो आई वुड रिक्वेस्ट द हैंड होल्डिंग, a strong hand holding with the parents, with the students, and I always would request कि जब स्कूल खुले, please do not hesitate to send your children to the school. The hostels are ready, the teachers are ready, the classrooms are ready, the mess is ready, the total environment is ready. It's an eco-friendly environment now. And we will take care of each and everything inside the school, outside the school. The parents will have to take care. जो कई crowded place में ले जाना या birthday parties, avoid that. अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर्स, क्वारंटाइन रूम्स हम बना रहे हैं. कोई अगर बच्चा डे स्टूडेंट्स, अगर कोई किसी को खांसी जुकाम होता है तो डेफिनेटली पेरेंट्स प्लीज कीप द चाइल्ड एट होम, डोंट सेंड. So those things have to be taken care of. आयुर्वेद ने कहा है काढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल ट्राई करिए. काढ़ा बच्चों को पिलाएं इम्यूनिटी बढ़ाने के, हल्दी वाला दूध उनको पिलाएं. ये सब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए. विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब चीजें बच्चों को ज्यादा दी जाए. फैटी फूड्स, ऑयली फूड्स कम दिए जाए. That is what the doctor in the morning also suggested, that these are the things that we should provide to our children and let them avoid the other things. So once again, I would thank all the parents who have joined us. I could see an alumni also. In fact, the part of the meeting is one of the alumni also who said that, sir, I will also like to talk to the parents today. And so welcome the strong alumni. He has just got admission in IIM, one of the topmost institutes also. Siddhant Richarya, he is there with us. I just wanted to add one more thing. See, we are also reopening, or we'll be opening rather, a new girls' hostel. We are shifting the present girls' hostel to the new building now. Again, to make it more airy, ज्यादा वहां धूप हवा सबको ज्यादा मिले, उनको एरिया ज्यादा मिले, और ये कोई भी इंफेक्शन होने के चांसेस कम. So thank you very much, all of you. Thank you, Kamal, and all the teachers and all the parents. Siddhant, thank you very much. Kamal, over to you. Thank you, sir. Kamal, yes, thank you. Yes, over to you. Thank you. Thank you, sir. Principal sir covered up almost all the points, and yes, it was an insight to what we are doing here in the school and how rigorously we are planning and putting the things in place so that as soon as the government guidelines are released and we get the instructions and the green signal from the government to open school, we are making the things in place and getting the things in place and getting ready to welcome the students again to the school. Well, definitely the times are challenging, and online classes are in thing, and they are going to stay for quite a while now. So what in China the classes are like,
And online classes, how are they conducted by the teachers? Glimpse of that and the details about it is being presented now further by the day school coordinator, Mrs. Pooja Bhargav. Mrs. Pooja Bhargav, it's over to you now, please. Pooja ma'am. Yes, sir. Yeah, Thank you please so take much. over. Yeah. Yeah. Good evening, everyone. I'll be speaking about online learning. As we all know, online learning is the future of education, and it is happening right now all around us. Yes, parents, not now also, but the future of our education lies with online learning. ऑनलाइन के बिना अब पढ़ाई पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तो पेंडेमिक चल रहा है, इसलिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अडॉप्ट किया है। बट जब आगे स्कूल खुलेंगे तो ये ऑनलाइन सेशंस कंटिन्यू करेंगे। जितने भी असेसमेंट्स हैं, कोई भी असाइनमेंट्स देने हैं बच्चों को, नोट्स शेयर करने हैं, वो सारे ही कुछ ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही किए जाएंगे। इसलिए ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन लर्निंग जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Physical classrooms have been replaced by virtual learning. जो हमारी फिजिकल क्लासरूम्स है, जैसे डेस्क और बेंच रखे हैं, बच्चे वहां आते हैं, पढ़ते थे, अब उनकी जगह ले ली है कंप्यूटर ने, लैपटॉप ने, मोबाइल्स ने, क्योंकि क्लासेस तो नहीं लग सकती हैं। इसलिए अब क्या ऑनलाइन क्लासेस जो है उन्होंने वो जगह ले ली है क्लासरूम्स की। बट लेट मी टेल यू, ये जो ऑनलाइन लर्निंग है, इट कैन नॉट बी अ कंप्लीट सब्स्टिट्यूट टू फिजिकल क्लासरूम्स, क्योंकि जब फिजिकल क्लासरूम में टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करना बच्चों को, बच्चों की हेल्प करना, कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों को उसी टाइम सॉल्व करना। बट जब ऑनलाइन में उनको यही चीज़ करनी पड़ती है, तो उसके लिए उनको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अ डे बिफोर द क्लास दे हैव टू प्रिपेयर द लेक्चर्स इन द इवनिंग। बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि जो टीचर्स हैं, दे आर सिटिंग एट होम एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर देम टू टेक क्लासेस, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। टीचर्स को अब दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है। जब वो क्लास में पढ़ाते हैं तब बहुत आसान होता है उनके लिए कि क्लास में गए, बोर्ड होता है उनके पास, एडुकॉम होता है, वो आसानी से वहाँ क्लास ले लेते हैं। बट जब उन्हें ऑनलाइन में पढ़ाना होता है तो दे हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि उन्हें पता है कि अब स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी उनको देख रहे हैं, तो दे हैव टू बी मोर प्रिपेयर्ड। जब पेरेंट्स देख रहे होते हैं, अब ये एक और चैलेंज आ गया उनके सामने, एवरीबडी इज वॉचिंग देम। It is not only the class of 30 students, but the parents are also watching the teachers. So there are many challenges which teachers are also facing while taking the online classes. इसलिए पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ऑनलाइन टीचिंग को बहुत लाइटली ना लें। और जितने भी कोर्सेज हैं, हर क्लास में कोर्सेज आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि स्कूल कब रीओपन होंगे। अभी for the next 2.5-3 months we cannot say that school will reopen. So online teaching के through ही हम हमारे लेसन सारे कवर करेंगे। And according to CBSE also, online teaching the schools have to take, because the attendance of the students will also be counted in this. और सिलेबस कम होने की बात की है CBSE ने, बट सिलेबस कम होगा, कितना कम होगा ये अभी नहीं मालूम है हमें। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि सिलेबस कम होगा तो हम बाद में पढ़ाई स्टार्ट करा दें, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो सिलेबस कट होने के बाद भी हमें बच्चों को पढ़ाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। दैट्स वाई सिलेबस कितना भी रहे, अगर हम अभी कंटिन्यू करते रहेंगे क्लासेस, तो उनका सिलेबस टाइमली कवर हो जाएगा एंड स्टूडेंट्स विल बी वेल प्रिपेयर्ड व्हेन दे जॉइन द स्कूल। अभी हम everybody saying schools are closed, but schools are not closed, my dear parents. Only the school building is closed. We, the teachers, are still working for the students. Our students are learning and teachers are teaching. So this is still going on. So we cannot say that schools are closed. Only the school building is closed. School is still connected with the students through online medium. So please tell your wards that they should attend the classes regularly, because there are many students who are not attending the classes regularly. And when they don't attend it regularly, what happens in online? When the teachers are teaching, now every day if one student is coming and the next day he doesn't come, then he lags behind in whatever topic is being taught.
So it is better that they attend the classes regularly. Earlier we had started the classes with the Zoom, but then in Zoom there were a lot of problems. Hacking issues were there, then the people from outside were entering. So school has adopted a new platform, that is Google Classroom, which is very convenient for the students as well as for the teachers. Through Google we can send the assignments online, and we can share whatever material, study material we want to send to the students. We are also using Never Skip app, through which we are conducting the online test. Now these online tests are a part of the assessment that we do throughout the year. The PTs, CTs which we do for classes, different classes, they will be a part of online only. We'll be conducting all the tests online. We all are heading towards new normal, and online teaching will be a part of new normal. I'm sure each one of you must be knowing about the new normal. Everywhere new normal is being displayed, especially in the social media. The new normal is, see, normally जब बच्चे पहले स्कूल आते थे, लॉकडाउन के पहले आते थे, उनका एक रूटीन था, क्लास में आए, असेंबली हुई, दिस वाज द नॉर्मल. अब नॉर्मल क्या होगा उनके लिए जब वो स्कूल ओपन होएगा, उसको हमने न्यू नॉर्मल टर्म कर दिया है कि वो आएंगे, देन दे विल सेटल डाउन एंड देयर विल बी सोशल डिस्टेंसिंग. अब उसी न्यू नॉर्मल में आ गई है ऑनलाइन क्लासेस. अभी वो घर में बैठे हुए हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. जो बोर्डर्स है वो जब हॉस्टल आएंगे तो अगेन दिस ऑनलाइन वुड कंटिन्यू. So these students should have laptop or tablets. I would recommend all the parents to shift their child's screen, small screen, to a bigger screen, क्योंकि जो मोबाइल में जब हम देखते हैं तो उसमें जो स्क्रीन टाइम होता है उसका 1 घंटा स्क्रीन का is more than viewing 2 hours screen on a bigger screen. अगर लैपटॉप या टैबलेट्स बच्चे यूज करेंगे तो उनकी आईज में लेस स्ट्रेन पड़ेगा. स्क्रीन टाइम का एक बस बहुत चला हुआ है सोशल मीडिया में कि स्क्रीन टाइम है इसलिए ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाएं, बच्चों की आंखों को नुकसान हो रहा है. बट लेट मी टेल यू, स्क्रीन टाइम जो है वो डिपेंड करता है कि बच्चा क्या देख रहा है. अगर वो एनिमेशन देख रहा है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है उसमें. गेम्स खेल रहा है तो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है. पर अगर वो इंटरैक्टिव सेशन कर रहा है टीचर्स के साथ या पेरेंट्स के साथ भी, तो इंटरैक्शन जो होता है उस सेशन में देयर इज लेस स्ट्रेन टू द आईज. इसलिए ऑनलाइन क्लास में उनको उतना स्ट्रेन नहीं होता है जितना कि वो गेम्स खेलते समय होता है. एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वरिड अबाउट दैट हमारा बच्चा, स्पेशली दीज सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ 9 to 12, दैट दे आर बिजी इन PUBG. बट व्हाट द school is trying to do is shift the students from this unproductive playing of games to the screen hours to the productive hours in which learning can take place and the students can learn something. Now in this online, the role of parents is very important. Teachers are sitting at their place and teaching, but they would not know what your child is viewing on the screen. So it is very essential for the parent to keep touch with the student while he is at home, what the ward is doing, what is he watching while the classes are going on. अगर कभी हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है, हमसे ज्यादा स्मार्ट है, we all agree to this. टेक्नोलॉजी के मामले में बच्चे ज्यादा स्मार्ट है, isn't it? तो जब वो क्या करते हैं, क्लास में तो लॉग इन कर देते हैं, बट देन दे कैन ओपन मल्टीपल स्क्रीन्स, यू नो, और वो क्लास में एंटर करने के बाद दूसरे स्क्रीन में क्या कर रहे हैं वो टीचर को नहीं मालूम है. टीचर को कब पता चलता है? जब टीचर्स क्वेश्चन पूछने लगता है तो स्टूडेंट्स घबरा जाता है, ऑल ऑफ अ सडन मीटिंग से आउट. देन बाद में रिजॉइन करके बोलता है मैम सो सॉरी वो नेटवर्क इश्यू हो रहा था. बट इशू नेटवर्क का नहीं था, इशू था कि वो कुछ और देख रहा था. So this can be monitored by you parents, and I request you that अगर आप पर हमारा collaboration रहेगा तो learning बहुत effective हो सकती है online में. जब आप और हम एक साथ मिलके करेंगे तो ये जो problem आती है ना कि online में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो आप भी नहीं कहेंगे और हम भी नहीं कहेंगे, और बच्चे भी सीरियस होंगे अगर उनको लगेगा कि हाँ हमारे पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ऑनलाइन क्लास करो. अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि स्कूल्स रीओपन होगा तब वो क्लास अटेंड करेंगे, बट अभी स्कूल कब रीओपन होगा ये किसी को नहीं मालूम है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू WHO दिस पैंडेमिक विल कंटिन्यू एंड द ऑनलाइन क्लास इज बाउंड टू स्टिक. मतलब हमें ऑनलाइन क्लास के साथ ही रहकर हमारी क्लासेस लेनी है, भले ही स्कूल बीच में ओपन हो सकता है फिर से शट डाउन हो जाए. सो अगेन वी हैव टू शिफ्ट टू दिस.
So it is better that we continue while the school reopens also. I hope I have been able to convince all the parents about the online class. In case you have any query regarding the login issue or anything else, you are free to question on the chat box. That's it from me for now. Thank you so much for listening to me so patiently. Over to you, Kamal sir. Thank you. Thank you very much, Pooja ma'am. Thank you very much. Yeah, I hope the queries related to the online classes must have been very clear with the parents. And indeed, new normal are these online classes only, which demand actually more attention and better preparation from the teachers. Teachers have to put in double the effort that they used to put earlier. And definitely what you said is bigger screens are recommended. Laptops and tablets are more comfortable and less stressful on the eyes rather than the mobile phones. So the parents would look into it definitely. And then, as you said, it is wonderfully said that one-way occupation, the research says one-way occupation is definitely more stressful. And if the students indulge in interactive sessions, they would not feel that stress, of course. And parents need to monitor it very carefully. They have to be proactive. They have to be watchful what their children are doing. So they need to take care of this, of course. Moving on further, we have our parent representative, Mr. Amit Rai from Chhatarpur, prominent businessman from Chhatarpur. Sir, may I Yes, just sir. add one thing? Sure, sir. Just, Yeah, sure, sir. I'm so sorry to intervene. No problem. I just wanted to add two more points to what Pooja ma'am had said. Sure, sure, sir. See, online classes cannot replace a teacher, cannot replace a school. Online classes is a support because of the new normal. It's something like there's a disruption which has come in. Earlier we used to have telephones, घुमाते थे और डायल करते थे. डिसरप्शन आया, बटन वाले आ गए. उसके बाद एक दूसरा सिंपल मोबाइल फोन जो आने लगे थे. कैलकुलेटर था पहले. इसी तरह से पीसीज थे, डेस्कटॉप थे, बड़े बड़े डेस्कटॉप थे. उस समय का वो न्यू नॉर्मल था. लैपटॉप से आज हर चीज हम मोबाइल फोन्स पे हैंडी हो गई है. उससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उससे फोन भी कर सकते हैं, उसको इंटरनेट की तरह से यूज भी कर सकते हैं. So all that is part of the new normal. So things have to change. We have to adopt those and adapt in our lifestyle. So lifestyle has to change. Face-to-face classes effective hoti hai. But at the same time, with the face-to-face classes, online is also a support to us. Different type of assessment Pooja ma'am had talked about. Yes, CBSE is also saying we should have different type of assessment, online assessments. Online assessment in the form of MCQs, online assessment in the form of group discussions, online assessment in the form of creative work the child can do, online assessment on the story writing, poetry, dramatics, all those things could be taken up. So ये सब हम कर सकते हैं, करना पड़ेगा हमको. So that is what I just wanted to add to it. Thank you very much. Thank you, sir. Indeed, we need to adopt to things and we have to adapt to the situation as well as what sir said. And online classes for sure cannot replace the school, the warmth of the school classrooms, the warmth and the relations that the students share with their friends, the warmth that when they come closer to the teacher and interact with them will never be replaced, I'm sure, definitely. Moving further, sir, Amit Rai is with us from Chhatarpur, parent representative. I would request him to address the audience, please now. Amit Rai ji, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Yes. हाँ जी, please. Welcome to the webinar, sir. Please, रखिए अपनी बात. Good evening to
principals and all the respected parents. सर अपना माइक्रोफोन थोड़ा क्लोज रख लेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। जी कंटिन्यू करिए सर। आप सुन पा रहे हैं सर? कंटिन्यू करें प्लीज। काफी अच्छा है, स्कूल की तरफ से स्कूल रिओपन होने के भी सर ने बात कर दिया, अरेंजमेंट किए हैं वो काफी अच्छे और अच्छे हैं। हम लोग भी सेफ्टी हैं तो और राय साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपका नेटवर्क एरिया में नहीं है शायद, आप थोड़ा चेक करें मोबाइल पे, नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दो कनेक्शन है आसपास दो कनेक्शन है। जी अगर आपके आसपास कोई और भी अगर लॉगिन करके बैठा हुआ हो तो जरा डिस्टेंस बना लें क्योंकि एको हो रहा होगा वॉइस। राय साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी कहिए। क्लियर है? अभी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा माइक क्लोज रखें अपने। ओके, आवाज अब क्लियर आई है? हाँ अब बेटर है, बोलिए। बस तो मैं वही कह रहा था कि जैसे प्रिंसिपल सर ने एड्रेस किया था ऑनलाइन क्लासेस के विषय में, वो काफी अच्छा था और बच्चों की जैसी टीचिंग चल रही है एज फार एज गुड, इज वेरी अप्रिशिएबल। और चाहेंगे कि आगे के बच्चों की टीचिंग ऐसी ही चलती रहे क्योंकि हर कोई अपने बच्चों की सेफ्टी को कंसर्न लें। और जैसे कोविड अभी इस समय ज्यादा फैल रहा है, उस सब को देखते हुए तो यही लगता है कि शायद ऑनलाइन क्लासेस ही आगे कंटिन्यू रहेंगी। और बाकी जो सर ने बोला है कि हम लोग को बच्चों पे ध्यान देना है कि ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे वो अपना अटेंडेंस पूरी मार्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज तो खैर देखने लायक है ही। बाकी सजेशंस के लिए तो सर ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, उनने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे जो हम लोग के दिमाग में रहते थे पहले से ही, तो कुछ बोलने के लिए बचे ही नहीं है हम लोग। दैट्स व्हाई सर इज आल्सो लाफिंग ऑन अस। Just that's all we want to say, sir. Over to you, sir, now. जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जरूर आपके सेफ्टी कंसर्न्स हमारे सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं सर, और पेरेंट्स और टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल गो हैंड इन हैंड, और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है स्कूल की पेरेंट्स के साथ में। और हम आपके बच्चों की जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं वो हम हमेशा दिमाग में रख के चलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको वर्कआउट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए राय साहब। सॉरी। हाँ जी, राइट। सो Mr. Rai was expressing the safety concern, security concern of the children, and so do we also. But only expressing the concerns would not do. Definitely, we have to put in certain strong. We have to take up certain strong methods and measures and do certain arrangements, which will definitely cater to the smooth running of the schools and ensure the reopening very soon. Further, now moving, and I would like to invite Mrs. Reet Monga, the primary coordinator, who would be briefing you about the arrangements done in the classrooms. The school has taken up certain measures for the classrooms. What kind of measures the school is putting forward so that the children remain safe, the social distancing is maintained, and there is no safety concern for the parents to go through. So just I would like to ask Mrs. Reet Monga now to take over and
put up her points regarding the classroom safety measures. Preet ma'am. Definitely, sir. Thank you so much. A very warm welcome to you to this parent orientation program. We are delighted to have you all, dear parents. मैं आपका इस मंच से स्वागत करना चाहती हूँ. सभी को मेरा नमस्कार. जैसा कि सर ने बोला है कि टुडे आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द classroom arrangement guidelines and the modalities to be followed on reopening of the school. जैसा कि सर ने बताया है कि हमारी क्लासेस जब हम ये क्लासेस खोलेंगे, जब हमारा स्कूल फिर से न्यू नॉर्मल में आएगा, तो हमारी क्लासेस में किस तरह का अरेंजमेंट होगा, मैं इस चीज पर आपके सामने पॉइंट्स रखना चाहूंगी. जैसा कि सर ने बताया कि मैक्सिमम 12 to 15 students will be allowed to sit in each classroom. एक क्लास में 15 से ज्यादा बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा. अगर किसी क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो हम उसको डेफिनेटली दूसरे सेक्शन में चेंज कर देंगे. The location of the desks and benches will be marked and their displacement will be strictly prohibited. जैसा कि हमने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए डेस्क्स और बेंचेस की पोजीशन को बिल्कुल मार्क किया जाएगा, जो हमारी तैयारियां हालांकि शुरू हो चुकी हैं, और बच्चों को बिल्कुल भी इन्हें आपस में मिलने के लिए बिल्कुल भी इसे प्रतिबंधित किया जाएगा. Covering of nose and mouth by face mask will be mandatory for all the students at all times, even when they are inside the classroom. It will be very important for all the teachers. They will be monitoring that all the children should be there with the face mask. किसी भी कीमत में किसी भी बच्चे को face mask हटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. And also definitely social or physical distancing will be implemented firmly. जैसा कि हम बार बार इस चीज पर जोर डाल रहे हैं कि physical distancing को definitely बच्चों के बीच में रखा जाएगा. Students will be required to carry their pocket hand sanitizers and use them suitably, and also parents are requested to give disposable tissue paper instead of handkerchief. इससे क्या होगा कि बच्चा अपना स्वेट या जो भी उसको पोंछना है, उसको क्लीन करना है, अपना फेस क्लीन करके he can throw that disposable tissue paper in the dustbin. He or she should not use that disposable tissue paper again and again, because there may be chances that hanky may be disinfected. Mass entry and exit at the time of arrival and departure will be restricted. कभी भी हम बच्चों को क्राउड में गेट के अंदर या गेट के बाहर आने जाने के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं दी जाएगी. One student at a time will be allowed to move in or out of the classroom following the marking on the floor. हमारे कॉरिडोर्स में, क्लास में तो हम मार्किंग करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने कॉरिडोर्स, हम अपने मेस, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारी हर क्लासेस में, कॉरिडोर्स में मार्किंग की जाएगी, जिसका स्ट्रिक्टली पालन किया जाएगा. A strict monitoring of the movement of students at all places will be ensured at all times. बच्चे को हमेशा कड़ी निगरानी में रखा जाएगा कि बच्चे एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे हैं या एक दूसरे से अपना सामान आदान प्रदान तो नहीं कर रहे हैं. All group activities, whether inside or outside the classroom, will be restricted. और अगर सारी ग्रुप एक्टिविटीज फिलहाल के लिए तो नहीं कराई जाएगी, लेकिन अगर डांस, म्यूजिक या अदर कोई करिकुलर एक्टिविटीज होगी तो भी उसमें हम टीचर्स फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करेंगे. लेंडिंग और बोरोइंग विल बी रिस्ट्रिक्टेड. जैसा कि बच्चों में आदत होती है एक दूसरे का पेन कॉपी ले लेना, लेकिन उन चीजों को बिल्कुल प्रतिबंधित किया जाएगा. Students will be trained and guided to avoid touching
anything other than their personal belongings. बच्चों को ये इस चीज की गाइडेंस और ट्रेनिंग दी जाएगी कि उन्हें अपने सामान के अलावा और किसी अपने फ्रेंड या किसी व्यक्ति के सामान को छूने की इजाजत नहीं है. No students will be allowed to touch notebooks, chalk, duster or any other thing kept in the classroom. किसी भी बच्चे को चौक डस्टर, जैसे कि पहले ऐसा हो जाता था कि बच्चे चौक डस्टर छू लेते थे, लेकिन ये सब चीजें उनको छूने के लिए नहीं दी जाएंगी. There will be a strict monitoring of the teachers teaching in the class. Teacher will not send any student to fetch the notebooks, chalk, duster, etc. to avoid multiple touches. Day scholars will have their breakfast, lunch on their allocated desks only. जैसा कि हमारे डे स्कॉलर्स पहले अपना ब्रेकफास्ट और लंच किया करते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर शेयर करके करते थे, लेकिन अब आज के इस सिनेरियो में उनको ये सब करने की, बिल्कुल शेयरिंग करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी और वो उनको अपना लंच और ब्रेकफास्ट अपनी ही सीट पर बैठ के करना पड़ेगा. All students must carry their books, notebooks strictly according to timetable as the lockers will not be in use in the classroom. जैसे कि साइना में हमारे साइना में लॉकर सिस्टम्स हैं, जिससे बच्चे 2 और 3 होमवर्क्स की बुक्स घर लेके जाते थे और बाकी की बुक्स अपनी लॉकर्स में लॉक करके रखते थे. लेकिन अब इस कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए हम बच्चों को लॉकर्स उपलब्ध नहीं कराएंगे, जिससे कि बच्चे किसी संक्रमित स्थान को छूने की कोशिश करेगा और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये लॉकर्स. सो वी विल नॉट बी अलाउइंग एनी चाइल्ड टू प्रोवाइड एनी लॉकर्स. These are the strategies, my dear parents, which we are going to implement on reopening of our school. We always pray safe and healthy lives of our beloved students. And if we work in collaborative manner, then definitely we will win this battle. So I think all must be satisfied with our plannings for real classes. If any suggestions from your side, you can type in the chat box. Over to you. Thank you so much. Over to you, Kamal sir. Yeah, thank you very much, Reet ma'am. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, so classrooms are also getting ready. They are ready, and so many other things which are required to keep the children safe, they are also being taken care of. And there is no stone left unturned, what I can say, or what the Saina school is trying to do at its best for the children. Further, moving on now. Kamal, may I add something more to this? Sure, sir. There's a question also which has been raised, and I'll just clarify that. Okay, fine, sir. Well, Mrs. Reet Monga had talked about the classroom, the social distancing. Sanitization is a must. And we certainly would be sanitizing the classrooms, the furniture, to the extent that each class teacher or the subject teacher will be having a sanitizer in his or her pocket, and when the child enters the classroom, the teacher will sanitize the hands of the child and then ask the child to move in. So sanitization would be there. Now, when we talk about sanitization, some issues have been raised that sanitization brings allergy to hands. Well, I would always say, yes, little sanitization is okay. Overdoing of sanitization is bad. Sanitization of body, hands, I'm talking about. Sanitization of furniture, school building, every day that has to be done, that will be done, whether the hostels, classrooms, or anywhere. That we have already decided, and we have started doing it also now. But as far as sanitization of hands is concerned, I would always prefer that child washes the hand.
So hand washes would be there, hand wash soap would be there, and after every half an hour, the child goes and washes the hand. That is the best sanitization which can be done. There was one more question which was raised by someone, that what about the hostel students when they come back? Well, I just forgot, the hostel students when they come back, they would be quarantined. That's the government guideline. The hostel students would be quarantined for 7 days or 14 days, whatever is as per the guidelines. And after that only, they would start attending the classes. In between, during that quarantine period, there would be online classes for them in their whichever rooms they are. So quarantine, and not only this, the day students will have classes in a separate area, and boarding students will have classes at separate area. So day students and boarding students will never be mixing at all. They will never be meeting also. They will be having different timetable, they will different routine also. So that also, I think I have answered that. I just would say, have a trust in the school and the teachers. And if you have a trust in the school and teachers, and what type of trust? That the school can protect the physical and mental health of the students. That is the type of trust is required. And that is what I said, handholding is required. If we have the trust, things would work out, and your suggestions would always help. So such wonderful suggestions came, and I thought I couldn't restrict myself to answer those. Someone is saying day boarders will bring their food. Yes, day boarders will have to bring the food. Possibly. If they are not interested in dining hall facility, we'll ask them to bring the food, not an issue. Okay, the priority is when they're coming to school, academics is the priority, safety is the topmost priority, safety and security. Thank you very much, Kamal. Over to you. Thank you, sir. Indeed, safety and security is the topmost priority and concern for each one of us, and we will do our best for sure. In the next speaker, we have Dr. Lokesh Dubey, who would be briefing us on the preparations in the hostels. What kind of arrangements we have done in the hostels. Yes, there has been a lot of concern of the boarder parents, especially because they send their children far away from their places, and their concern is definitely understandable. So we would like to brief them on our arrangements that we have done for the hostel students, so that they remain safe and the parents can remain assured. Dr. Lokesh Dubey, sir. Thank you, Kamal sir. नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप एक रविवार जो छुट्टी का दिन है, आपने हमारे स्कूल के इस आमंत्रण को स्वीकार किया, और ये एक नए तरीके का पीटीएम है, और निश्चित रूप से इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो मित्रों, आज अभी तक की चर्चा के दौरान जितना कुछ मैंने सुना, आपके साथ जो बात हुई, ये तो हमारी और आपकी दोनों की जो चिंता का विषय है वो है सुरक्षा। और सुरक्षा का कारण सभी को पता है कि कोरोना का संक्रमण है, लेकिन ये निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि यदि ये कारण चिंता का है और ये चिंता अधिक बढ़ रही है, तो हमें चिंता छोड़कर चिंतन के साथ सुरक्षात्मक उपाय अपनाने होंगे। देखिए, हम और आप तो उस पीढ़ी में है साहब जिसने एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक बंद देखा है, जिसकी कल्पना तो युद्धों के समय भी नहीं की जा सकी। और इस बंद के बाद, इस संकट से जब हम उभर के थोड़ा सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से अब चिंता है बच्चों की शिक्षा को लेकर के, बच्चों की स्कूल को लेकर के। मैं दो पंक्तियां आपके सामने रखूं, फिर मैं अपने कुछ स्कूल की कोर कमेटी ने छात्रावास के लिए नियमों का निर्धारण किया है उस पर मैं चर्चा करूंगा। और उससे पहले एक बात और मैं याद दिला दूं कि गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमें प्राप्त होंगे उनका हम पूर्णतः पालन करेंगे। साथ में माननीय प्राचार्य जी के साथ मिलकर कोर कमेटी ने कुछ निश्चित निर्धारित किया है, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पंक्तियां ये कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। अरे हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर तू, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर तू, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं।
तो ये एक तरह की ठोकर लगी है, उसके बाद हम चलना सीखेंगे। तो हमारे जो छात्रावासी छात्र हैं, जो छात्रावास में आएंगे, उनके लिए जिन नीतियों का, जिन नियमों का निर्धारण किया गया है, तो उसके लिए हमने जो तय किया है वो ये है कि जब बच्चे घर से हॉस्टल के लिए, छात्रावास के लिए आएंगे, तो अपने साथ फिटनेस सर्टिफिकेट निश्चित रूप से लेके आएंगे, जो डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होगा कि बच्चा किसी भी तरह के संक्रमण से मुक्त है। ठीक है, जब छात्र हमारे यहाँ प्रवेश करेंगे तो थर्मल स्कैनिंग एक सामान्य प्रक्रिया है, हम तो अभी भी कर रहे हैं, छात्रों के साथ भी करेंगे। हाँ, बच्चे जब छात्रावास में प्रवेश करेंगे तो हम आशा करते हैं कि अपने साथ अपना सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है, मास्क है, जो यूज एंड थ्रो करते हैं उसे निश्चित रूप से लेके आएंगे। हाँ, अब बात है जो बार बार एक चिंता का विषय है कि जब बच्चे हॉस्टल में होंगे तो डिस्टेंस को कैसे मेंटेन कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम आपको श्योर करते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारे हॉस्टल वार्डन, हमारे टीचर मिलकर के उनके डिस्टेंस को, 2 गज का जो डिस्टेंस है वो बच्चे बना करके रखेंगे, चाहे वो रूम के अंदर हो। अभी हमारा जो अरेंजमेंट है, हमारे जो सीनियर हॉस्टल में बच्चे हैं, एक रूम में 4 बच्चे अभी तक थे, हमने उसको भी कम करके 2 कर दिया है। बेडों की दूरी 2 गज कर दी है, अब एक रूम में केवल 2 बच्चे होंगे। जो डॉर्मेट्री है जूनियर हॉस्टल में, जहां एक रूम में 16 बच्चे 15 बच्चे थे, उधर भी हमने 8 बेड कर दिए हैं, वहां भी पर्याप्त दूरी है। प्रिंसिपल सर ने जैसा बताया कि गर्ल्स हॉस्टल में जो थोड़ा सा अभी हमारा पुराना गर्ल्स हॉस्टल था वो कंजेस्टेड था, अब हमने नई बिल्डिंग में उसको शिफ्ट किया, वहां भी बच्चों को पर्याप्त खुलापन, पर्याप्त दूरी मिलेगी, उसको लेकर के भी आप अपनी चिंता को दूर कर दें। छात्रों को एक कक्ष से दूसरे कक्ष में प्रवेश की अनुमति भी हमारे छात्रावास अधीक्षक नहीं देंगे, इसके लिए भी हम निगरानी में बच्चों को रखेंगे। हर निश्चित अंतराल के बाद बच्चे अपने सैनिटाइजर लगाएंगे, हाथ धोएंगे, इसके लिए भी हमारे जो वार्डन है बार बार उनको प्रेरित करते रहेंगे। हाँ, जो बच्चे यदि किसी तरह के संक्रमण से ग्रसित होते हैं, हल्की सर्दी खांसी भी उनको यदि होती है, तो जैसा कि प्रिंसिपल सर भी आपसे बतला चुके हैं, मैं फिर आपको श्योर करता हूं कि सामान्य सर्दी बुखार खांसी के लक्षण दिखने पर भी उस बच्चे को एक अलग कक्ष में रखा जाएगा। उसके लिए हमने क्वारंटाइन कक्ष अलग से बना रखा है, वहां वो बच्चा रहेगा ताकि संक्रमण दूसरों में ना फैले, बच्चा भी जल्दी स्वस्थ हो जाए। इवनिंग प्रेप की बात करें, रीत मैम ने क्लास के लिए तो आपको बता ही दिया कि बच्चे दूर दूर बैठेंगे, पर इवनिंग प्रेप की यदि मैं बात करूं तो इवनिंग प्रेप के दौरान भी सभी बच्चे अलग अलग व निश्चित दूरी पर बैठेंगे, इसकी भी तैयारी हमारे साइना स्कूल ने कर ली है। किसी भी बोर्डर बच्चे को डे बोर्डर और डे स्कॉलर बच्चे के साथ हम मिलने की कोशिश करेंगे कि वो नहीं मिलें, ताकि किसी तरह का कोई और रिस्क ना हो। हमारे जो बोर्डिंग के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर हैं वो भी सबके सब कैंपस में ही होंगे, ये भी स्कूल ने तय कर लिया है। एक चिंता होती है कि बच्चे साहब लाइन में जब चल रहे हैं, मेस के लिए जा रहे हैं, क्लास के लिए जा रहे हैं, तो आपस में हो जाएंगे। निश्चिंत रहिए, तब भी हम बच्चों के साथ डिस्टेंस को बना के रखेंगे, उसकी भी तैयारी हमारे स्कूल ने कर दी है। बच्चा जब मेस में जाएगा, अभी एक आज चर्चा आ रही थी भोजन की, मेस में अभी एक टेबल में कुछ 18 बच्चे बैठते हैं, हमने उसका सिटिंग अरेंजमेंट जो बनाया, अभी एक टेबल में कुल 8 बच्चे बैठेंगे, तो वहां पर भी डिस्टेंस उनका बना रहेगा। बच्चों को मेस में गर्म पानी दिया जाएगा, रात में सोते समय बच्चों को गर्म दूध हल्दी के साथ, जैसा कि आयुर्वेद के विद्वान आयुर्वेद चिकित्सक सलाह दे रहे हैं, उसका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हम उपलब्ध कराएं, उसका भी पालन हो। और कुल मिलाकर के पूरा का पूरा छात्रावास 24 घंटे हमारी निगरानी में होगा, और बच्चे कोशिश प्रयास यही है कि बच्चे किसी भी तरह के कठिन समय से संक्रमण से मुक्त रहें। Hello. I think Lokesh sir's voice is not reaching. Am I audible to you all? Yeah. Am I audible, sir? Yes, sir. You are audible. All right. Yes. So those were the arrangements and the measures that the school has already taken, and you can understand by those the things that were presented to you by Dr. Lokesh Dubey that the school has already taken up so many measures and so many arrangements have been done, which tells us the concern the school feels for the students, because the boarders stay on campus, they stay with us, so we also cannot take any risk, and your children are equally precious to us. They are
your responsibility as well as our responsibility. They stay here, they become our responsibility all the more. So पेरेंट्स को ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो कैंपस में जिस दिन भी लॉकडाउन खुलेगा और गवर्नमेंट गाइडलाइंस हमें परमिट करेंगी स्कूल खोलने के लिए, आपका बच्चा हमारे साथ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, इसके लिए आप सदैव आश्वस्त रह सकते हैं. Next in the list of the panelists is Mr. Sanjay Agrawal, one of the parents from Katni. मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय जी से कि कृपया आप मंच को संबोधित करें. संजय जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ सर. गुड इवनिंग. संजय अग्रवाल जी. गुड इवनिंग सर. जी प्लीज रखें अपनी बात. जी सर, मेरे अंदर जितने भी कंसर्न थे सर, और जैसा कि प्रिंसिपल सर, पूजा मैम, लोकेश सर, आपने सर और प्रीत मंगा मैम ने जितना बोला, मेरी सारी शंकाएं तो वैसे ही उसमें दूर हो चुकी हैं. मेरी तरफ से जो भी क्वेश्चंस थे सर. क्या मेरी आवाज आ रही? जी 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 बिल्कुल आ रही है, रखें बात. जी जी. तो मेरे अंदर जितने भी सवाल थे उन सभी का मुझे लगभग जवाब मिल चुका है. कुछ शंकाएं बस रह गई हैं कि जिस तरह की अब ऑनलाइन टीचिंग और जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी पोस्ट कोविड स्कूल खुलने के बाद, तो कुछ सर चीज़ें हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस भी बच्चे सीखते हैं, जो कि अपने सिलेबस में नहीं होती हैं. जैसे कि बच्चे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, उससे भी कुछ सीखते हैं. आपस में फूड शेयर करते हैं, आपस में अपनी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. वो कैसे मेंटेन होगा, खैर वो तो वक्त बताएगा. और मेरे कोई कंसर्न नहीं है, बस स्कूल का टाइमिंग अपन थोड़ा शॉर्ट रखेंगे जब स्कूल खुलेगा, ऐसा मेरा सोचना है. बस सर, थैंक यू. जी थैंक यू वेरी मच अग्रवाल साहब. बिल्कुल ये कंसर्न तो है ही, और शायद इसलिए प्रिंसिपल सर ने भी कहा था कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्कूल को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती. इसीलिए स्कूल का महत्व अपनी जगह है, इसीलिए टीचर्स का महत्व अपनी जगह इंटैक्ट है. और ये ऑनलाइन क्लासेस तो समय की मांग है, और एक न्यू नॉर्मल जो सर बात कर रहे थे या पूजा मैम भी आपके समक्ष रख रही थी, वो सच बात है. एक न्यू नॉर्मल जरूर है, लेकिन ये कभी भी स्कूल को, टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. और जिस कंसर्न को आपने एक्सप्रेस किया अग्रवाल साहब की आउट ऑफ सिलेबस जो लर्निंग होती है, जो सोशल बच्चा बनता है, इंटरैक्ट करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है, टीचर्स से बात करता है, वो एक सोशल लर्निंग होती है. वो बच्चों की अभी थोड़ी हैम्पर जरूर हो रही है, लेकिन उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ये देखें कि बच्चा अपने परिवार के करीब आ रहा है, अपने माँ बाप के साथ ज्यादा समय बिता रहा है, अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहन के साथ ज्यादा समय बिता पा रहा है. तो ये भी एक सोशल होने का माध्यम मिल रहा है बच्चों को. हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं. थैंक यू वेरी मच अग्रवाल साहब आपके थॉट्स रखने के लिए. नाउ इज द टाइम दैट वी इनवाइट the alumnus of our school, Siddhant Richaria, a very bright student who had been a wonderful and voracious reader. As an English teacher, I do appreciate his reading habits. Siddhant एक बहुत ही मेधावी छात्र रहा है, और हमेशा उसके हाथ में बुक्स देख सकते थे हम स्कूल में. जब भी कॉरिडोर में मिलेगा या क्लासरूम में मिलेगा, किसी क्लास को बंक करते हुए भी वो अपने डेस्क में छुपाई हुई बुक्स पढ़ता था. तो ये हमारी पुरानी यादें हैं, और एक वंडरफुल रीडर था, और आज काफी अच्छा कर रहा है. और हम उसको इनवाइट करते हैं कि आए और अपने विचार रखे हम लोगों के बीच में. वी आर प्लीज टू हैव यू ऑन द फोरम. सिद्धांत रिचारिया. हेलो. यस सिद्धांत, वी कैन हियर यू. यस वेरी मच. गो ऑन. Thank you, Kamal sir. First of all, I would like to thank you for your kind words, and to Principal sir for inviting me to speak today. And मैं सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा. 2012 में मैंने साइन इंटरनेशनल स्कूल 9th क्लास में ज्वाइन किया था, जिसके पहले मैं सतना के स्कूल में था. 2012 से 2016 में मैंने 12th पास आउट किया, और आज भी मैं कह सकता हूँ कि वो 4 साल में मैंने जितना सीखा है साइना में, वो शायद मुझे आगे लाइफ में सीखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हॉस्टल स्टूडेंट था, और सेल्फ डिपेंडेंसी, डिसिप्लिन, जिस भी तरह की अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली उनका यूज मैं आज तक कर रहा हूँ. मुझे कई बार मौके मिले कि मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करूँ, क्विजेस में जाऊँ, इन सब के लिए, एंड आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज.
और बिल्कुल मेरे हिसाब से ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कोरोना का समय कितना अभूतपूर्व है। मतलब कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि पूरे देश की, पूरी दुनिया की इनफैक्ट इकोनॉमी एक वायरस के चलते इस तरीके से बंद होकर रह जाएगी। और जैसा कि प्रिंसिपल सर ने कहा कि हॉस्टल्स और स्कूल जो है, मतलब वो कभी भी ऑनलाइन क्लासेस को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही सर, वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी भी है कि बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि देखिए अभी ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हैं और ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ें, लेकिन आज से 5-7 साल बाद जब यही बच्चे ग्रेजुएट होंगे कॉलेजों से और दे वुड बी जॉइनिंग द वर्कफोर्स एज यू नो फ्रेशर्स, उस समय पे कोई ये नहीं देखेगा कि क्या ये 2020 में कोरोना काल के बच्चे हैं, कोरोना में मतलब कोरोना के समय उनकी पढ़ाई को क्या हुआ, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। खासकर 10th और 12th क्लास के लिए है ये, क्योंकि जो 10th और 12th की परसेंटेजेस हैं वो सारे बड़े कॉलेजेस देखते हैं। यहाँ इंडिया के कॉलेजेस देखें, IIMs देखें, या फिर आप बाहर के आईवी लीग कॉलेजेस देखें। तो अभी इस समय ज्यादा जरूरी है, और मैं कहूंगा कि एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है हर स्टूडेंट के लिए कि स्कूल की पढ़ाई के अलावा वो अपने फ्री टाइम पे अलग अलग चीजों पे अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। इस समय कोडिंग का बहुत महत्व दे रहे हैं हर कंपनी, इवन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। पाइथन, लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, दे आर यूज्ड फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड ऑल दैट, अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु वुड बी एंगेज्ड टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस। और जब आगे जाके स्कूल खुलता है तो पिछले 90 दिनों से, पिछले कुछ 80 दिनों से हम सब घर में बंद हैं, और बहुत मुश्किल है एक, मतलब हम टीनेजर्स के लिए और कॉलेज वालों के लिए, हम सब के लिए, कि ना हम अपने दोस्तों से मिल पा रहे हैं, ना हम बाहर खेलने जा पा रहे हैं। स्कूल का माहौल एक बहुत जरूरी होता है, हम उसमें भी नहीं है। तो एक तरीके से जब स्कूल खुलेगा तो वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे जाएं। पीयर लर्निंग जो स्कूलों में होती है, कॉलेज में होती है, वो ऑनलाइन क्लासेस उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। टीचर वो पढ़ा सकते हैं क्लास का सिलेबस, लेकिन जो चीजें, जैसा कि इन मेरे पहले जिन पेरेंट्स ने कहा कि जो बच्चे सीखते हैं आपस में, उसको कभी सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा मैं यही कहूंगा कि मेरे ख्याल से जिस तरीके के स्टेप्स चाइना ले रहा है और जिस तरीके के स्टेप्स कोर कमेटी ने डिसाइड किए हैं हॉस्टल्स में सोशल डिस्टेंसिंग इंप्लीमेंट करने के लिए, क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर सैनिटाइजेशन इंप्लीमेंट करने के लिए, वो बेसिकली स्कूल के इंटरनेशनल टर्म को अंडरलाइन करता है, बिकॉज द सेम थिंग्स आर बीइंग यूज्ड बाय कॉलेजेस एंड स्कूल्स आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल. The countries that have opened their education system in Wuhan, China, the epicenter of the virus, even they have gone ahead with the same things. So all I can say is that all the best to the graduates of 2020 who will be passing out, and to the parents and students, I'll just like to say that hold steady. बहुत जरूरी है कि आप धीरज बना के रखें और बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें. पढ़ाई बहुत जरूरी होती है. आप अगर आगे जाके आपको किसी आर्टिस्टिक प्रोफेशन में जाना है, उसके लिए भी एक एजुकेशन, अच्छा से अच्छा बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है. 10th 12th के बच्चे खासकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें. और मेरे ख्याल से मैं इसी के साथ अपनी बात पे विराम देना चाहूंगा. थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू टू साइना एज वेल. वेल, थैंक यू वेरी मच सिद्धांत. और लोकेश सर की शिक्षा की छाप अभी भी तुम्हारे ऊपर बिल्कुल जाहिर है कि अपनी वाणी को तुम विराम दे रहे हो. दैट वाज वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच. आपकी भी पढ़ाई का है सर. मेरे कैट के में सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे इंग्लिश में ही आए हैं. Yeah, I am proud of you. I am proud of you for that. Thank you so much. Well, you said exactly. You said it very well. Coding और नई skills सीखने का ही ये समय है, and the students must improve on their skills. The time that they are getting now, the free time, the leisure that they are getting now is unprecedented. They would never get that, I believe. And this is how they can definitely employ this time to learn some new skills which will help them out in their future, of course. And patience रखना बहुत ज़रूरी है, जैसा सिद्धांत ने कहा, parents को भी. और patience will definitely pay. और this is just a bad patch और challenges दुनिया में और जीवन में आते रहते हैं. और I'm sure
we are very optimistic, and we will definitely fight it out and come out of it very soon. And once again, the school will blossom, and the corridors will be flooded with the children, and there will be all chaos in the corridors and the school playgrounds. The children will be visible playing. You know, the teachers do long for it. Teachers का सारा जीवन इसी में बीतता है, बच्चों को मैदान पर खेलते हुए देखना, क्लासरूम्स में एड्रेस करना, कॉरिडोर में उनको डिसिप्लिन करना, ये सारी चीजें इन सब चीजों के साथ टीचर्स जीते हैं. और आई एम श्योर दैट स्टूडेंट्स आल्सो डू एंजॉय, एंड दीज बिकम देयर वंडरफुल स्वीट मेमोरीज फॉरएवर. सो इसी बात के साथ में हमारा speaking session यहाँ पे over होता है हमारे. I've done with all the speakers, and now the question session will begin. It's an open forum for the parents who are there on board now. They can put up their questions. जिन भी parents को जो on board हैं अभी अपने questions रखना हो वो रख सकते हैं, या अगर चाहते हैं address करना या बात करना तो वो भी कर सकते हैं. Thank you so much. So it's open forum now. अगर आपके कुछ questions हो तो रख सकते हैं. Over to principal sir now. Well, thank you very much, all of you. If there are questions, I'll definitely answer. Some of the questions I've already answered. कुछ और हैं जो मेरे दिमाग में आया जो आंसर करना चाहता था. See, students and teachers, they are the school's responsibility. उनका safety, security school की responsibility है. So definitely the school will take care of it. The management as a school, as an institution, it is our responsibility. एक reopening of classes का है. स्कूल जब भी reopen होगा staggered way में होगा. पहले classes 9, 10, 11, 12 को open कराया जाएगा. उसके बाद में classes 6, 7, 8 को कराया जाएगा. फिर primary school को open कराएंगे. संजय जी ने पूछा था कि स्कूल टाइमिंग्स का. डेफिनेटली संजय सर, स्कूल टाइमिंग्स विल बी लेस. देयर विल बी अ शॉर्टर ड्यूरेशन, और बच्चे कम ड्यूरेशन के लिए स्कूल में आएंगे. मॉरल वैल्यूज सिखाना पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है. ये जो टाइम है जिस समय बच्चे घर पे हैं, मॉरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस, डिसिप्लिन, कल्चर जो घर का है वो सिखाना बहुत जरूरी है. और उसके लिए I would request all the parents, not only the parents, but my request should reach the grandparents also, that if they can sit with the child and talk to them about these moral values, it will be wonderful. एक artificial intelligence एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट हुआ है, और जो अभी सिद्धांत ने बोला कोडिंग वगैरह का, तो AI कोडिंग वगैरह भी, उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस आजकल बहुत चल रही हैं. फ्री क्लासेस भी हैं, कोडिंग क्लासेस. I'll request parents, maybe their children can join that AI coding classes, some skill education classes, and maybe this art integration could be made. जो आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग वगैरह जो करते हैं बच्चे, घर में बैठ के करें, और उससे ही सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. अपने सब्जेक्ट्स को सीखने को, अपने का एक स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा उससे. ये देखिए, कब तक बच्चे घर में बैठेंगे, कब तक आप बैठा सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है. पेरेंट्स ऑल्सो विल नॉट बी एबल टू मेक द चाइल्ड कीप सिटिंग इन द होम. घर के अंदर नहीं बैठा सकते. बच्चा जिद करेगा, बाहर जाने के लिए करेगा, बाहर का खाने के लिए जिद करेगा, सब चीज करेगा. बट रिस्क हर जगह है. रिस्क इज इन ईच एंड एवरीवन्स लाइफ. चैलेंज हमें लेने पड़ेंगे, and this is what we are teaching our children, that please be ready for challenges. There will be different challenges, different type of challenges, and certainly the child has to learn. And these are the students. 12th class का student next year बाहर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा. There will be challenges over there. वहां अकेला ही होगा. यहाँ तो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ स्कूल सपोर्ट कर रहा है, वहां कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई कॉलेज सपोर्ट नहीं करता है. So those challenges would be there. Syllabus as per the government guidelines कम होगा, तो वो उसी हिसाब से किया जाएगा. प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे नहीं होंगे, yes, virtual practical classes होते हैं, हो जाएंगे. And once the school starts, the labs will be open and the students will be going to attend these classes.
So that is what I had to say. मैं जाते जाते एक आज ही एक मेरे स्टूडेंट हैं जिसको मैंने पढ़ाया था आज से करीब 25 साल पहले, उसने एक कविता लिख के भेजी है और मैं आपके सामने आज वो कविता बोलना चाहता हूँ। ये स्टूडेंट का नाम है ज्ञान राज माणिक प्रभु, ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं और एक छोटी सी कविता उन्होंने लिखी है। पहले जैसी बात कहाँ अब, पहले से हालात कहाँ, नहीं रहे अब दिन पहले से, पहले जैसी रात कहाँ। ढोल नगाड़े लाख बजा लो, अब वैसी बारात कहाँ। वही पुराना सूरज है और वही पुराने तारे हैं, वही चांद है वही आसमां, वही वही नजारे हैं। बादल भी आते जाते हैं लेकिन वो बरसात कहाँ। आहें हिचकी हंसी ठिठोली बने आज हैं अफसाने, अपने ही बेगाने लगते अनजाने तो अनजाने। लेन देन लाखों का होता लेकिन वो सौगात कहाँ। निकला करते थे जब आंसू कोई पहुंच दिया करता, धीरे धीरे हाथ पीठ पर कोई फेर दिया करता। आंसू पहुंच पीठ थपथपा दे ऐसा जज्बात कहाँ। सांस सांस वही है वही धड़कने लेकिन वो एहसास नहीं। आसपास तो कई लोग हैं कोई दिल के पास नहीं। जान अपनी लुटवा दे ऐसी अब खैरात कहाँ, ऐसी अब खैरात कहाँ। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू कमल। Thank you very much, sir. Lovely poem to end the session, of course. And thank you very much, all the parents who supported the school. Thank you very much for joining the session. And thank you very much for being so patiently listening to all the speakers. And I'm sure you must have sorted out a lot of queries of yours that you must be having in your minds earlier. And I think that you will be more assured and more comfortable now towards your school, your child's school, and the school is always there for you to look forward to coming to your visits. And we are waiting for the government guidelines to get the green signal and open the school very soon. So thank you very much, all of you, and looking forward to see you soon again. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, all of you, and good wishes. Have a safe time, always safe and secure time. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. शिवानी, Thank you, sir.